Good morning, students. I welcome all my dear students in the English online lecture. Students, myself Miss Pooja, I am going to teach you today English grammar of standard 2nd. So students, for learning English grammar, open your Navjeevan term book, that is your combined book, and also open your English notebook for referring today's English grammar lesson. Okay students, so in our today's online lecture we are going to learn a new topic. Let us see the topic name. Students, open your page number 31 of your combined book. You can see page number 31. बच्चों, आपको आपके combined book का पेज नंबर 31 ओपन करना है. आज के हम ग्रामर टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 5, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स और क्वेश्चन मार्क, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पढ़ने से पहले पंचुएशन ग्रामर में क्या होता है और इसे हम कैसे करते हैं वो हम अच्छी तरीके से समझेंगे. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द पंचुएशन, let us see what is the meaning of punctuation in English grammar. Students, our topic name, our lesson name is punctuations. बच्चों, आज के हमारे टॉपिक, हमारा चैप्टर का नाम है punctuations. PUNCTUATIONS, punctuations. इसे कहते हैं पंचुएशंस. पंचुएशंस होते क्या है? इसमें हम 3 से 4 चीज़ सीखेंगे. फर्स्ट है फुल स्टॉप, सेकंड है क्वेश्चन मार्क, थर्ड है कॉमा. ओके स्टूडेंट्स, सो इन द पंचुएशन लेसन we are going to learn 3 to 4 punctuation marks, that is full stop, question mark, comma and capital letter in the beginning of the sentence. So students, have you all understood? The chapter's name is punctuations. Let us begin with punctuation. Lesson punctuations. Let us see the lesson punctuations. What is punctuation? बच्चों, अब हम लेसन पंचुएशंस पढ़ रहे हैं. तो पंचुएशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका मतलब समझाऊंगी कि पंचुएशन हम किसे कहते हैं. What is punctuation? The English language has a system of symbols and signs known as punctuation. हमारी जो भाषा है इंग्लिश, जो हमारा लैंग्वेज है, जिसे हम भाषा कहते हैं, जिससे हिंदी हमारी लैंग्वेज है, उसी तरीके से हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश भाषा में कुछ सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स, कुछ चिन्ह यूज़ होते हैं, कुछ साइंस यूज़ होती है. चिन्ह जिसे हम मार्क बोलते हैं, कुछ चिन्ह हम अलग अलग यूज़ करते हैं वाक्य में, उसे कहते हैं पंचुएशन. ओके स्टूडेंट्स, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स. Now the language which we are studying, you all know which language we are studying, students? Yes, we are studying English language. Okay, so let me explain you the meaning of punctuation in more easier way. Now
just when you write a sentence, you use full stop at the end of the sentence. You use capital letter, the first word capital in the beginning of the sentence. So these all sign and symbol are called as, known as punctuation. Okay students, have you all understood the simple meaning of punctuation? Now the next is, why do we need punctuation? अब दूसरा क्वेश्चन है कि हमें पंचुएशन क्यों चाहिए, मतलब पंचुएशन की ज़रूरत क्या है, वो कब इस्तेमाल किया जाता है. पंचुएशन शोज अस हाउ टू स्ट्रक्चर sentences and how each sentence should be read. पंचुएशन हमें बताता है कि वाक्य किस तरीके से कंप्लीट होता है, सेंटेंस किस तरीके से कंप्लीट होता है. जैसे कि आप देखते हो, जब आप वाक्य स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कि पहला लेटर, पहला अक्षर आपका कैपिटल लेटर में हो इंग्लिश में, और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाते हो. उसी प्रकार आप हिंदी में आगे के क्लास में भी पढ़ोगे पंचुएशन. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में. स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इन द ग्रामर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द बेसिक टॉपिक इन द ग्रामर वेयर यू नीड टू नो हाउ टू यूज़ एंड वेयर टू यूज़ कॉमा, full stop and capital letter in the sentence. आपको स्टैंडर्ड सेकेंड से ही आपको इसका नॉलेज दिया गया है इस लेसन पंचुएशन का, ताकि आप जब सेंटेंस पढ़ो या उसे लिखो तो आपको कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क का मतलब समझे. Now students, I am going to show you some punctuation mark and then I will explain you each mark, what is the punctuation each mark, and we are going to see the punctuation mark. बच्चों, अब मैं आपको पंचुएशन के मार्क्स दिखाऊंगी कि पंचुएशन मार्क कौन कौन से है और हमें उनका इस्तेमाल कैसे करना है. Punctuation mark. In your mobile screen you can see there are 3 punctuation mark. The first punctuation mark is full stop. You can see a dot. Full stop means a dot. Second one is question mark. You can see the sign of a question mark. Yes, it is a question mark. And the third one is comma. You can see the red color sign, that is called as comma. Okay students, now full stop. What is full stop? Where it is used at the end of a sentence. full stop, जो डॉट आपको फर्स्ट वाला फुल स्टॉप दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो कहाँ पर यूज़ होता है? सेंटेंस के आखिरी में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी डॉट डालते हैं. आपने जैसे देखा होगा मोबाइल स्क्रीन पर मैंने लिखा है पंचुएशन मार्क, तो लास्ट में के बाद मैंने क्या डाला है? डॉट. ओके स्टूडेंट, फुल स्टॉप उसे कहते हैं फुल स्टॉप. सेकेंड इज क्वेश्चन मार्क, यूज्ड at the end of an interrogative sentence to form a question. Question mark हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि why, where, what, then we use this question mark. And the third is comma, used to denote a pause in a sentence. कॉमा का यूज़ तब होता है सेंटेंस को पॉज लेने में, यानी सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करने में या सेंटेंस को ब्रेक करने में हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं.
Okay students, now we are going to study this 3 punctuation mark in detail. Okay, there are 4 types of punctuation that we are going to study. Here you can see the 3 punctuation mark. First is full stop, second is question mark, third is comma. Now when we begin the sentence, we use capital letter. That is also a punctuation mark. Okay students, so let us study the punctuation mark in more detail. The first one is full stop. The first punctuation mark is full stop. बच्चों, हमारा पहला पंचुएशन मार्क है फुल स्टॉप. द मीनिंग ऑफ फुल स्टॉप, वेयर इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस. अब हम हमारे सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज़ कभी करते हैं जब सेंटेंस एंड होता है, तो सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. marks the end of a sentence. Okay students, yes, you can see here marks the end of the sentence. After the sentence word, the full stop is used. The sign of the full stop is a dot. Yes or no? That is called as full stop. बच्चों, आप इसका साइन देख सकते हो बॉक्स में. ब्लैक कलर का फुल स्टॉप है यानी डॉट है, उसे कहते हैं फुल स्टॉप. वो हर सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, व्हेन वी राइट अ सेंटेंस इन द कॉम्पोजिशन और माई सेल्फ माई स्कूल, वी यूज़ द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. नाउ द सेकेंड वन इज comma. Comma is, you can see the sign of a comma. Yes, in the box you can see a sign of comma. Now what is the use of comma in the sentence? Indicates a natural pause in a sentence or is used to separate items in a list. बच्चों, comma सेंटेंस में कब यूज़ होता है? जब हम सेंटेंस को ब्रेक देना चाहते हैं, यानी जब हम सेंटेंस बड़ा होता है उसे 2 पार्ट में हम डिवाइड करना चाहते हैं या ब्रेक देना चाहते हैं, तब वो कॉमा यूज़ होता है, जिससे कि सेंटेंस जो बड़ा होता है वो 2 हिस्सों में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. और जब हम रीडिंग करते हैं इंग्लिश में, जब कॉमा आता है तब हमें थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, द कॉमा इंडिकेट्स अ नेचुरल पॉज इन अ सेंटेंस और यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट. ओके स्टूडेंट्स, इफ देयर आर मेनी आइटम्स इन द लिस्ट, द कॉमा इज यूज्ड इन द आंसर. ओके, तो कॉमा का मतलब और कॉमा का इस्तेमाल आप कब करोगे? जब आप सेंटेंस में आपको कहीं पॉज देना है या काफ़ी सारे वर्ड दिए गए हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स यानी काफ़ी सारे शब्द दिए गए हैं, तो आप हर एक शब्द के बाद कॉमा का इस्तेमाल करके सेंटेंस पूरा करोगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द थर्ड punctuation mark. Third punctuation mark is question mark. You can see the question mark in the box. The sign of the question mark you can see. Yes or no? It is similar to a dog's tail. You can see that. Yes or no? Yes. Indicates the end of a question. इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हर एक क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है. आपको क्वेश्चन मार्क कौन से क्वेश्चन में यूज़ करना है? जब आप
सेंटेंस रीड करोगे आपको वहाँ पर पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है। जैसे कि वेयर डू यू लिव। व्हेन यू विल रीड द सेंटेंस you will come to know that it is a question, that is the question is asked. For example, what is your name? Now what is your name, you can see that the question is asked, so the end of the question you will use question mark punctuation. Okay students, where do you live? Again question mark. What is your age? Question mark. Which is your favorite color? Question mark. This all are the example of question mark. Okay students, so here in this punctuation we have studied the three main punctuation mark. The first one was full stop. The second one was comma and the third one is question mark. बच्चों हमने 3 टाइप के पंचुएशन मार्क पढ़े। द फर्स्ट वाला था फुल स्टॉप। आपको फुल स्टॉप हर एक सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करना है, और जब आप इंग्लिश में रीडिंग करोगे टेक्स्ट बुक में जहाँ पे फुल स्टॉप आया वहाँ पे आपको 2 मिनट्स 1 सेकेंड का पॉज लेना है। ओके, आप वहाँ पे 1 सेकेंड का होल्ड करोगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप रीडिंग करोगे। और जब आप राइटिंग करोगे, लिखोगे माई सेल्फ, माई स्कूल, कोई कॉम्पोजिशन, तो आपको हर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज कॉमा। कॉमा जब आपको सेंटेंस को पॉज करना है या सेपरेट करना है तो आप कॉमा का इस्तेमाल करोगे। और थर्ड वन है क्वेश्चन मार्क। जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया व्हाट इज़ योर नेम, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन डालोगे। जैसे कि आप बॉक्स में देख रहे हो, आपको इस साइन का यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर एक्सरसाइज इन आवर कंबाइंड बुक। ओपन योर पेज नंबर 31। बच्चों अब आपको आपके कंबाइंड बुक में अच्छे से ध्यान देना है। पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 5। जिन बच्चों के पास कंबाइंड बुक नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आपको आपके इंग्लिश के नोटबुक में इस वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है। और जिन बच्चों के पास कंबाइंड बुक है वो आपके कंबाइंड बुक ओपन करो और इस क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरीके से समझ के लो। Students, those students who are having the combined book will open their combined book, and those who are not having, they are going to open their English notebook and they will write down the question and answer in their notebook. Question number 5. Punctuate the following using capital letter, full stop or question mark. Now students, in this sentence, in this you will use 3 punctuation, that is first capital letter you will use, then full stop and question mark wherever it is necessary in the sentence. अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको पंचुएट करना है पहला कैपिटल लेटर से, उसके बाद फुल स्टॉप का यूज़ करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का। फर्स्ट वन, वाई आर यू लेट। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ा, वाई आर यू लेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यस और नो स्टूडेंट्स, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए। तो आपको आंसर में W कैपिटल आएगा आपका, फर्स्ट वर्ड W विल बी योर कैपिटल एंड एट द लास्ट यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क साइन। एट द एंड ऑफ द
answer you will put a sign of question mark. Second one, this is my sister Leela. T, in the answer you can see the first word will always be कैपिटल. बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पे नाम आया कोई बॉय और गर्ल का, जहाँ पे पहला वर्ड है आपको हमेशा कैपिटल लिखना है. तो आपका टी कैपिटल होगा, THIS दिस में, और लीला गर्ल का नेम है तो L कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप. थर्ड वन, सी, रवि एंड अजय आर प्लेइंग फुटबॉल. रवि and Ajay. Ravi is the name of a boy again, so R capital. Ajay is the name of a boy. Always the name of a person will start with the capital letter. Okay students? A capital, are playing football at the last, full stop. D, Christmas is celebrated on 25th December. Now क्रिसमस इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल. क्रिसमस फेस्टिवल त्यौहार का नाम है. तो आपको ये याद रखना है, कभी भी कोई भी नाम आए, या वो व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, त्यौहार का नाम हो, कोई चीज़ का नाम हो, आपको उसे फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है. क्रिसमस, D1 देखो. फोर्थ वन, सी, क्रिसमस, सी कैपिटल. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December. अगेन डिसम्बर इज़ द नेम ऑफ द मंथ. डिसम्बर वापस महीने का नाम है, तो आपको डी, डिसम्बर का डी कैपिटल लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप. ई, वेयर इज़ योर बुक. अब वेयर इज़ योर बुक. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन जस्ट imagine and you know that where is your book means it is a question mark because question is asked where is your book. अब आप क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो तब आपको समझ में आ रहा है where is your book, आपकी किताब कहाँ है, आपकी बुक कहाँ है, मतलब आपको प्रश्न पूछा है. तो W कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है. F, माई फ्रेंड सीमा lives in Goa. My friend, first word M capital. Seema is the name of a girl, S capital. Goa is the name of a place, so G capital. And last, full stop. So question number 5 is completed. Students, complete it in your combined book. And then question number 6 is story writing. Question number 6 is story writing. Students, स्टोरी राइटिंग हमारा नेक्स्ट पार्ट है ग्रामर में, यानी नेक्स्ट लेसन है, जो कि एक छोटा सा आपको कंबाइन बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है. तो मैं इसी वीडियो में आपको स्टोरी राइटिंग भी एक्सप्लेन करूँगी. पंचुएशन हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी राइटिंग क्वेश्चन नंबर 6 से. मिसेस बनी एंड 2 लिटिल बनीज. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टोरी राइटिंग दैट वी हैव स्टडीड प्रीवियसली. ओके स्टूडेंट्स, सेम थिंग वी हैव टू जस्ट look at the picture, help box is given, we have to complete the story. अब आपको पिक्चर को देखना है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हेल्प बॉक्स में आंसर दिए गए हैं. वो आंसर आपको स्टोरी में कौन कौन से जगह पे आएंगे, यूज़ होंगे, वो आपको लिख के स्टोरी कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 6, look at the pictures and use the words given in the help box to complete the story. The first one in the help box, the first word is banyan tree. Second word is frightened. Third word is munching. Fourth word is vegetable. The next word is lived happily. The next is farm, farm.
the down you can see green leafy. Again the next is French bean. The next is sleeping. And the last one is happy and safe. Let us start the story, and we are going to use the words from the help box. Mrs. Bunny lived happily. What will come, students? Lived happily. So in the first you will write, first blank you will write lived, lived. Then happily, 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 with her two little bunnies underneath a big banyan, banyan, banyan tree, tree, full stop. While going to the market, Mrs. Bunny left her two little bunnies in the farm to play. In the next dash, farm, farm will come. Bunny 1 decided to visit the nearby vegetable garden. Vegetable, vegetable, vegetable. He ran into the garden and saw fresh green leafy lettuce. GREEN, green, LEAFY, leafy lettuce. He plucked the lettuce leaves and started munching them. MUNCHING, munching means eating. He then plucked and ate the French beans. French beans is a vegetable. Name of a vegetable, French beans. FRENCH, French, BEANS, beans. His stomach was full. He felt tired and lazily lay on the soil. Suddenly, the owner of the vegetable garden came and saw Bunny sleeping. SLEEPING. You will write sleeping in the dash. Her screamed frightened, FRIGHTENED, frightened. The bunny, he rushed all over the garden to save himself. Finally, he got himself outside the village vegetable garden happy. Last dash, HAPPY, happy, AND and SAFE, safe. Happy and safe. Now students, I will explain you the story in Hindi. Mrs. Bunny lived happily with her two little bunnies underneath a banyan tree. Mrs. Bunny rabbit थी जो अपने दो रैबिट के बच्चों के साथ, अपने दो बच्चों के साथ एक बैनियन ट्री के नीचे रहती थी. बहुत ही खुशी खुशी रहती थी. While going to the market, Mrs. Bunny left her two little bunnies in the farm to play. जब मिसेस बनी मार्केट जाती थी तब अपने छोटे दो बच्चों को, बनी रैबिट को, फार्म यानी छोटा सा खेत, ओपन एरिया, वहाँ पर छोड़ती थी बच्चों को खेलने के लिए. बनी 1 डिसाइडेड टू विजिट द नियर बाय वेजिटेबल गार्डन. एक दिन बनी ने डिसाइड किया कि मैं उन बच्चों को वेजिटेबल गार्डन में लेकर जाऊंगी. He ran into the garden and saw fresh green leafy lettuce. एक दिन वो गार्डन में गई और उसने देखा फ्रेश ग्रीन लीफी लेटुकस. उसने हरे हरे पत्तों को देखा. ग्रीन लीफी लेटुकस यानी सब्जियां के पत्ते थे. He plucked the lettuce leaves and started munching them. उन्होंने उन पत्तों को तोड़ा. बनी रैबिट जो थी उसने पत्तों को तोड़ा और वो खाने लगी. He then plucked and ate a French beans. अब वो फ्रेंच बीन्स
यानी फ्रेंच बीन भाजी होती है, अब उसे तोड़कर खाने लगी। His stomach was full. He felt tired and lazily lay on the soil. अब वो थक गया। आप देख सकते हो रैबिट जो था उसने पहले ग्रीन लीफी पत्ते खाए थे, अब फ्रेंच बीन्स खाए थे, अब उसके पेट में दुखने लगा और वो रैबिट वहाँ पे सो गया ज़मीन पर, सॉइल में। Suddenly the owner of the vegetable garden came and saw Bunny sleeping. जो गार्डन का मालिक था वो आके देखा तो बनी रैबिट वहाँ पर सोया था। Her scream frightened the bunny. उसने इतने ज़ोर से चिल्लाया कि वो रैबिट डर गया और उठकर गार्डन से भागा। Finally he got himself outside the vegetable garden, happy and safe. और वो वहाँ से इतना तेज़ी से भागा कि डायरेक्ट बाहर जाके निकला और वो बिल्कुल सुरक्षित और खुश दिख रहा था। तो ये थी हमारी स्टोरी। सो दिस वॉज आवर स्टोरी। नाउ स्टूडेंट्स, for your homework you are going to complete page number 31 and 32 of your combined book. Okay students, and those students are not having, they will complete in the English notebook. Here we have completed our entire English and grammar portion. बच्चों, हमारा इंग्लिश और ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में से रिवीजन स्टार्ट करेंगे पढ़ना, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आने वाला है। नाउ सून फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द रिवीजन दैट इज़ गोइंग टू कम इन आवर एग्ज़ाम। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी and do practice the lessons at your home.